हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 291, 292 एंड 293। 293 बात करता है शासकों की निजी थैली की राशि यानी प्रीवी पर्स के बारे में। प्रीवी पर्स सम्स ऑफ रूलर्स। प्रीवी पर्स सम्स ऑफ रूलर्स 291 आर्टिकल सेज प्रीवी पर्स सम्स ऑफ रूलर्स, शासकों की निजी थैली की राशि के बारे में। उसके बाद में क्या होता है, रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट 1971 एस 2, चैप्टर सेकेंड बोरोइंग्स 292 borrowings by the government of India, the executive power of the union 292 about borrowing by the government of India. The executive power of the union extends to borrowing upon the security of the consolidated fund of India within such limits, if any, as may from time to time be fixed by parliament by law, and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed. 293 article says about borrowing by states. Borrowing by states. Number 1, subject to the provisions of this subject to the provisions of this subject to the provisions of this article, the executive power of a state extends to borrowing within the territory of India upon the security of consolidated fund of the state within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the legislature of such state. Fixed by the legislature of such state by law, and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed. Number 2, the government of India may subject to such the government of India may subject to such condition as may be laid down by or under any law made by parliament, make loans to any state or so long as any limits fixed under article 292 are not exceeded, give guarantees in respect of loans raised by any state, and any sums required for the purpose of making such loans shall be charged on the consolidated fund of India. Number 3, a state may not, without the consent of the government of India, raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to a state by the government of India or by its predecessors government, or in respect of which a guarantees has been given by the government of India or by its predecessor government. Number 4, a consent under clause 3rd may be guaranteed subject to such Number 4, a consent under clause 3rd
may be guaranteed subject to such conditions if any as the government of India may think fit to impose. Chapter 3rd, Property, Contracts, Rights, Liabilities, Obligations and Suits. Property, Contracts, Rights, Liabilities, Obligations and Suits. अध्याय 3, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद के बारे में। 294 article says about succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases. क्या कहता है 294 आर्टिकल अबाउट सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, असेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस इन सर्टेन केसेस एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर ए, all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the government of the Dominion of India, and all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the government of each governor's province shall vest respectively in the Union and the corresponding state. And number B, all rights, liabilities and obligations of the government of the Dominion of India and of the government of each governor's province, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities and obligations respectively of the government of India and the government of each corresponding state, subject to any adjustment made or to be made by reason of the creation before the commencement of this constitution of the Dominion of Pakistan or of the provinces of West Bengal, East Bengal, West Punjab and East Punjab. उसकी बात हो रही है, तो अब मैं इसको हिंदी में देख लेती हूँ. अनुच्छेद 291 शासकों की निजी थैली की राशि की बात की है, जबकि संविधान 46वां संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा निश्चित. अध्याय 2, उधार देना. अनुच्छेद 292 कहता है कि भारत सरकार द्वारा उधार देना, भारत सरकार के द्वारा उधार देना, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा नियत करे उधार देने तक, और ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए प्रत्याभूति देने तक. अनुच्छेद 293 कहता है राज्यों के द्वारा उधार देना. राज्यों के द्वारा उधार देना. नंबर 1, इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधान मंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार देने तक, और ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए प्रत्याभूति देने तक है. नंबर 2, भारत सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकथित की जाए किसी राज्य को उधार दे सकेगी, या जहां तक अनुच्छेद 292 के अधीन नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है, वहां तक किसी ऐसे राज्य द्वारा किए गए उधारों के संबंध में प्रत्याभूति दे सकेगी, और ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित की जाएंगी.
नंबर 3 है किसी ऐसे उधार का जो भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके संबंध में भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग अभी भी बकाया है तो वह राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकेगा। नंबर 4 खंड 3 के अधीन असहमति उन शर्तों के अधीन यदि कोई हो दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे। अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। अनुच्छेद 294 बताता है कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं का उत्तराधिकार इस संविधान के प्रारंभ से ही नंबर का जो संपत्ति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए हिज मैजेस्टी में निहित थीं और जो संपत्ति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रत्येक राज्यपाल वाले प्रांत की सरकार के प्रयोजनों के लिए हिज मैजेस्टी में निहित थीं, वे सभी इस संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन के या पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब प्रांतों के सृजन के कारण किए गए या किए जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रहते हुए क्रमशः संघ और तत्स्थानीय राज्य में निहित होंगी। और नंबर खा जो अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं भारत डोमिनियन की सरकार की और प्रत्येक राज्यपाल वाले प्रांत की सरकार की थीं, चाहे वे किसी संविदा से या अथवा उद्भूत हुई हों, वे सभी इस संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन के या पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब प्रांतों के सृजन के कारण किए गए या किए जाने वाले किन्हीं समायोजन के अधीन रहते हुए क्रमशः भारत सरकार और प्रत्येक तत्स्थानीय राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं होंगी। तो ये बात की जा रही है। अब मैं 288 से पढ़ लेती हूँ संशोधन क्या क्या हुआ इनमें। Explanation: the expression law of state in force in the clause shall include a law of number 1 explanation to clause first omitted by the Constitution 6th Amendment Act 1956. Number 2 substituted by S4 Ivid 64 substituted by S4 Ivid 4 clause 2nd and 3rd. Number 3 substituted by the Constitution 46th Amendment Act 1982 S3 4 clause 3rd. Number 1 inserted by the Constitution 7th Amendment Act 1956 S19. Number 2 substituted by the Madras State Alteration of Name Act 1968. 53 of 1968 S4 for Madras WEF 14/1st 1969.
यानी क्या कहा जा रहा है कि हिंदी में पढ़ देती हूँ थोड़ा सा। नंबर 1, संविधान छठा संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 4 द्वारा खंड 1 के स्पष्टीकरण का लोप किया गया। अनुच्छेद 2 नंबर 2, संविधान छठा संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 4 द्वारा खंड 2 और खंड 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 3, संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1982 की धारा 3 द्वारा खंड 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 1, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 19 द्वारा अंतः स्थापित। नंबर 2, मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 का 53 की धारा 4 द्वारा 14/1/1969 से मद्रास के स्थान पर प्रतिस्थापित। तो ये बात की जा रही है। तो ठीक है, कल मिलती हूँ नए अनुच्छेदों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। जय भीम, जय संविधान।